देते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारी सरकार किसानों के हौसलों को पंख देने के लिए उनके साथ खड़ी है और पिछले कुछ वर्षों में कृषि और किसान कल्याण के लिए तमाम सकारात्मक फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसी की एक कड़ी है और किसानों के कल्याण के लिए सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही आपको प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाएंगे जिसमें वो किसान सम्मान निधि की राशि किसानों को हस्तांतरित करेंगे। Yes, thank you, Nikhil, and we welcome you all to the special edition Farmers First, wherein we'll talk of the special initiatives which have been taken by the government to ensure welfare of the farmers. Agriculture not only gives riches to a nation, but the only riches she can call her own. This is through agriculture only that a nation survives, a nation thrives, and also shines. Prime Minister Narendra Modi has vehemently endorsed this thought, and the government is aiming to double the farmers' income by 2022. A number of measures, initiatives have been taken for the upliftment of the farmers to ensure that they have a secure future. And one of those is the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana. Pradhan Mantri Narendra Modi today will be interacting with farmers from 6 states and will also digitally deposit a total of 18,000 crore rupees in the bank accounts of 9 crore farmers under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. The farmers will share their experiences on various initiatives taken by the government for their welfare. We get you more in this report. December 25th, the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee is celebrated as Good Governance or Sushashan Divas each year. This year, Prime Minister Narendra Modi will release the next installment under Prime Minister Kisan Samman Nidhi via video conferencing. He will transfer more than 18,000 crore rupees directly into the accounts of more than 9 crore beneficiary farmer families. The PM will also interact with farmers from 6 different states. The farmers will share their experiences with PM Kisan and also on various other initiatives taken by the government for the welfare of farmers. Union Agriculture Minister will also be present on the occasion. 25 दिसंबर को जब सुशासन दिवस है उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। देश भर में प्रत्यक्ष रूप से किसानों की भागीदारी 1 करोड़ से अधिक होने वाली है और 5 करोड़ से अधिक किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। कल 12 बजे देश के सभी किसान भाई आम नागरिक को प्राप्त होगा। 11 बजे से जो प्रमुख नेता या किसान हैं उनका उद्बोधन हर केंद्र पे होगा। इस कार्यक्रम में सभी सांसद, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री, सभी विधायक, सभी मेयर, कारपोरेटर एवं सभी जनप्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi was launched in December 2018. The number of eligible farmers was estimated at 12.5 crores based on census data of 2015-16. If we talk about the installments given so far, 11.44 crore farmers across the country have benefited. The DBT installments continued even through the corona pandemic, proving to be a boon for farmers. प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से हमें 2,000 रुपये मिलते हैं, जिससे हम खाद, बीज और कोई जरूरी काम उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। सरकार का धन्यवाद। मानो हर सुविधा मोदी जी की बहुत बढ़िया मिल रही है। 6,000 रुपया से वो हमारे खुद को भी काम चल जाए, खाद बीज को चल जाए और बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। तो धन्यवाद सो मोदी जी ने। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से हम 2,000 रुपये मिलते हैं, जिससे हर किसान अब खाद, बीज, दवाई में इस्तेमाल करता है और कुछ निजी कामों में भी उपयोग करता है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। Under the PM Kisan scheme, a financial benefit of 6,000 rupees per year is provided to the eligible beneficiary farmers, payable in 3 equal 4-monthly installments of 2,000 rupees each. The fund is transferred directly into the bank accounts of the beneficiaries. With Shailendra Mishra in Delhi, DD India. And from here we take you live to Chennai. Information Broadcasting Minister Prakash Javadekar is addressing farmers.
is now recognized as Good Governance Day. And Modi ji, his real disciple, has showcased India how the good governance can happen. நான் முதலே மாநில தலைவர் முருகன் அவர்களுக்கு இந்த வெற்றிவேல் வீரவேல் என்ற கோஷத்தை மக்களுக்கு கொடுத்ததற்காக நான் அவரை பாராட்டுகின்றேன். நான் இன்றைக்கு இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறேன். இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் அனைவரும் படிக்க வேண்டும். மோடி அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு செய்த நல்ல திட்டங்கள் இந்த புத்தகத்திலே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் அவருடைய பிறந்த தினம், தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட அவருடைய பிறந்த தினம் நல்லாட்சி தினமாக கொண்டாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நல்லாட்சி என்றால் என்ன என்று இன்றைக்கு உலகத்திற்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Today, the most important point is the whole country is debating farmers' issues. Because some farmers and their political masters have launched an agitation in and around New Delhi and showing as if it's an all India phenomenon and it's a fight of all farmers of India. But today BJP is reaching more than 19,000 centers where such gatherings are happening. That is very important. And that shows where the farmers stand. Farmers are happy with the new laws. இன்று நாடு முழுவதும் விவசாய பிரச்சனையை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. டெல்லியிலே ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இது விவசாய ये चेन्नई से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे और अब आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबोधित कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, अभी तक सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायतें दर्ज करने का काम करती थी। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सेवा कि आप 181 नंबर पर फोन करके जाति प्रमाण, आपका आधार नंबर बता दो, आधार नंबर डालना पड़ेगा और आधार नंबर आपने बताया तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो आप मांगोगे आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाओ। देखो भाई, सुशासन का मतलब है, सारे कलेक्टर आज बैठे होंगे, सुन लें, सारे अफसर सुन लें। सुशासन का मतलब है भाजपा के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, बिना लिए दिए, बिना लिए दिए मन में। All right, so that was Madhya Pradesh Chief Minister addressing farmers, and as we told you that today Prime Minister will be interacting with farmers, and also he will be giving out digitally the installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme to the farmers. In line with that, different BJP leaders and BJP MLAs, MPs are interacting with farmers all across the country. From here we take you to Amethi, where Union Minister Smriti Irani is addressing the farmers. सौभाग्य था कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अमेठी की प्रतिनिधि बनने के निर्णय के साथ आपके मध्य में भेजा। 2014 का वो मंजर मैं आज भी भूल नहीं पाऊंगी, जब गांव-गांव, पात-पात जनता से मिलने के बाद ये सच अमेठी का उजागर हुआ कि वर्षों से जिस परिवार ने अमेठी की इस रणभूमि से, इस पुण्य भूमि से अपनी राजनीति को सींचा, उस परिवार ने अमेठी की जनता को विकास से जानबूझकर दूर रखा
विकास की दृष्टि से अमेठी की जनता का तिरस्कार किया ताकि वो सोने के महलों में रह सके। ये मेरा परम सौभाग्य था कि जब आपके मध्य में मैं आई तो आपने मुझे भाजपा की प्रत्याशी के नाते नहीं बल्कि एक बहन के नाते स्वीकार किया और दीदी कहकर मुझे बुलाया। एक संकल्प, एक सौगंध हमने खाई थी साल 2014 में। लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। संकल्प उनका था कि भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का प्रत्याशी आपके मध्य में आपकी परेशानियां बढ़ाने नहीं बल्कि विकास करने आया है, और वो विकास जिससे वर्षों वर्ष 5 दशकों से ज्यादा ये जनता दूर रही है। आज आपके मध्य में कहते हुए मुझे हर्ष है कि जब हमारे जिला अध्यक्ष आपको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि जब सरकार प्रदेश में भाजपा की नहीं थी तब अमेठी के नागरिक, अमेठी के किसान भाई दीदी के पास आकर कहने लगे कि आज अगर अमेठी के किसान को कोई दरकार है तो कम से कम दीदी एक खाद का रैक उतार दो। यह असाधारण बात इसलिए थी क्योंकि साल 2014 का लोकसभा का चुनाव मैंने नहीं जीता था, लेकिन जनता ये जानती थी कि अगर काम करवाना है तो भाजपा ही विकास का काम करा सकती है। किसान का उत्थान भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही संभव है। आपने एक आवाज उठाई कि खाद का रैक चाहिए। जब दिल्ली तक ये समाचार गया तो दिल्ली में मीडिया भी स्तब्ध थी कि क्या खाद का रैक उस संसदीय क्षेत्र में नहीं उतर पा रहा है जिसके सांसद राहुल गांधी हैं। किसानों से आकर जब मीडिया ने बात की तो किसानों ने कहा कि जब सांसद बने तब से लेकर अब तक सिर्फ चुनाव में एक दिन दिखाई देते हैं। पीड़ा सुनने के लिए मात्र भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और किसान भाइयों और बहनों ने कहा कि हमारा ये विश्वास है कि हमारी दीदी खाद का वो रैक पहुंचाएगी। आज मैं आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधानमंत्री जी को। साल 2014 में हम अमेठी की लोकसभा सीट नहीं जीते थे, लेकिन वचनबद्ध थे अमेठी की जनता के प्रति कि आपकी हर चुनौती का समाधान हम आपको प्रेषित करेंगे। और 15 दिन में सांसद न होते हुए भी खाद की रैक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी की सरकार ने किया। ये बात आज मैं इसलिए दोहराती हूं क्योंकि आज देश भर में किसानों को झूठ बोलकर बरगराने वाला अगर कोई पाप कर रहा है तो अमेठी का वह पूर्व सांसद राहुल गांधी कर रहा है। अमेठी का एक किसान जानता है कि खाद के संदर्भ में अमेठी की किसान की क्या दुर्गति होती थी। लाइन लगती थी खाद की दुकान के बाहर और पुलिस से लाठीचार्ज करवाया जाता था अमेठी के किसानों पर। यह भूला नहीं है अमेठी का किसान। और तब लाठीचार्ज किया जाता था जब देश में सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी। तब अमेठी की जनता पर लाठीचार्ज करवाया जाता था खाद के लिए जब सांसद राहुल गांधी थे। बिल्कुल, तो एक वक्त था जब किसानों को खाद के लिए लाठीचार्ज किया जाता था और आज किसानों को बहुत सुगमता से खाद मिल रही है। फिलहाल यहाँ से रुक करते हैं जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त किसानों को संबोधित कर रहे हैं दिल्ली में। ओजस्वी वाणी हमारे स्मरण पर आती है। आज श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है और दूसरा भारत रत्न महामना मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी देश की आजादी के आंदोलन के बहुत बड़े नेता तो रहे, परंतु बनारस विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनाकर उन्होंने भारतीयता और हिंदू दर्शन शास्त्र को एक लंबी आयु प्रदान करने का काम किया। आज मालवीय जी का भी जन्मदिन है। आज के दिन आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। 12 बजे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी
एक ही क्लिक दबाकर 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने वाला। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नरेंद्र भाई जब लेकर आए, विपक्ष के सारे नेता, ये राहुल बाबा समेत सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। कितना किया था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला। और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं किसानों का हितैषी। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तब से किसानों के हित को सर्वोपरि प्रायोरिटी दी है। मित्रों, मैं कुछ आंकड़े देश के किसान भाइयों के सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन 265 मिलियन टन था और आज वो उत्पादन बढ़कर 296 मिलियन टन पहुंचाने का श्रेय हमारे किसान भाइयों को जाता है। और किसान हित की बात करने वाले राहुल गांधी, जब आपकी सरकार थी, शरद पवार जी जब आप कृषि मंत्री थे, 2013-14 में किसानों के लिए कितना बजट देते? 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब किसानों का बजट था 21,933 करोड़ रुपया। 21,900 करोड़ रुपया। कितना था भाई बोलो? सिर्फ 21,900 करोड़ रुपया। अभी मोदी जी ने बजट दिया, अंतिम बजट में 21,900 करोड़ से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़। अरे हमारा हिसाब मांग रहा है, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। अरे भाई, आप किसानों को सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया देते थे, मोदी जी ने इतने कम समय में 21,000 करोड़ में बढ़ोतरी करते 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 1,34,400 करोड़ रुपया तक पहुंचा है। मित्रों, एमएसपी की बात करते हैं। मैं आज किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। और कम से कम यूपीए वालों को एमएसपी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। सालों से किसान की मांग थी कि एमएसपी का दर अपना जो खर्च है कृषि उपज का, उससे 50% होना चाहिए, 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। मित्रों, मांग थी या नहीं थी बताओ? थी या नहीं थी? 70 साल तक किसी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 के बीच में एमएसपी की लागत, किसान की लागत से एमएसपी का भाव 1.5 गुना कर किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का काम। So that was Union Home Minister Amit Shah addressing farmers in the national capital. From here we take you to Dwarka, again in the national capital, where Union Minister for Defence Rajnath Singh is addressing a gathering. उन्होंने जो जो कदम उठाए हैं हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में किसी ने किसानों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतने प्रभावी कदम नहीं उठाए।
मैं उन सारे कार्यक्रमों की यहां विस्तार में जाकर चर्चा करूंगा, लेकिन समयाभाव होने के कारण, क्योंकि 4-5 मिनट का समय बचा है, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर मैं यहां पर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे सर छोटू राम जी रहे हों, चाहे साहब सिंह जी बरबा रहे हों, चाहे आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, इस सच्चाई को समझते हैं कि जब भारत के ऊपर कोई आर्थिक संकट आएगा तो उस आर्थिक संकट से भारत को उबारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की हो सकती है तो हिंदुस्तान के किसानों की हो सकती है। बहनों भाइयों, किसानों के कल्याण के लिए ही भारत की संसद ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 बिल पास किया है, 3 एक्ट बन गए हैं। लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा यह गलतफहमी पैदा की जा रही है, यह तीनों एक्ट किसान विरोधी एक्ट हैं। बहनों भाइयों, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान की औलाद हूं। हमने भी खेतों पर जाने का काम किया है, अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ खेतों पर हमने भी जाकर खेती बाड़ी को अच्छी तरह देखा है और समझा है। और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कौन सी ऐसे प्राविधान हो सकते हैं जो किसानों के कल्याण के लिए हैं और कौन से प्राविधान ऐसे हैं जो किसान के लिए के हितों के विरोधी हैं। सारे एक्ट को मैंने देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, एक भी प्राविधान उसमें ऐसा नहीं है जो किसानों के हितों का विरोधी प्राविधान हो। यह बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा किसानों की आमदनी को हम कुछ ही समय के बाद हम 2 गुना करना चाहते हैं। उस दृष्टि से जितने भी कदम उठाए गए हैं, कुछ चीजों की चर्चा स्वयं यहां पर प्रवेश वर्मा ने की है, इसलिए मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। गलतफहमी पैदा की जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है और आज किसान भाइयों के बीच खड़े होकर यह किसान का बेटा बहनों भाइयों वचन दे रहा है, किसी भी सूरत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त नहीं होगी। हम आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं। अरे मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब जब भारत में आर्थिक मंदी आई है, जब जब भारत में आर्थिक मंदी आई है, आर्थिक मंदी से इस भारत को संभालने का काम यदि किसी ने किया है, इस देश के किसान ने किया है। बहनों भाइयों, हमने वह कई ऐसे अवसर देखे हैं जब भारत में आर्थिक मंदी आई है। कहा जाता है कि मंडी समाप्त कर दी जाएगी। बहनों भाइयों, मंडी व्यवस्था होनी चाहिए। शरद पवार जी जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, वह भी जब कृषि मंत्री थे, उन्होंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था, इस एपीएमसी एक्ट को स्वीकार करो, मंडी की व्यवस्था अपने यहां करो। उसको भी हम लोगों ने मान लिया। इतना ही नहीं, आप अपना माल कहीं भी बेचना चाहो, यह आजादी देने का काम भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने किया है तो इस एक्ट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और इतना ही नहीं, आपकी आमदनी केवल 2 गुना नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कैसे बढ़ सके, हम लोगों की सोच यह है। यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाती है, उसमें कानून में उठाकर कोई तो देखे, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी आकर जो भी ठेका लेगा वह किसान को छल नहीं सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। यह किसान जितनी कीमत पर एग्रीमेंट करेगा कि हमारे पास 1 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में यदि हमको इतना पैसा मिलेगा तभी हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करेंगे। यदि वह कॉन्ट्रैक्टर अथवा सामूहिक खेती करने वाला वह व्यक्ति उतने पैसे का भुगतान नहीं करेगा तो उसके ऊपर सीधे दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस प्रकार की व्यवस्था इस एक्ट में। All right, so that was Union Defence Minister Rajnath Singh clearing all the air, all the doubts, all the myths which the farmer unions might have on the agriculture reform laws, which is making headlines these days. And we've had leaders, BJP leaders, panning across the country and explaining the measures, the efforts which have been made by the government for upliftment and prosperity of the farmers all across the country. बिल्कुल, और साफ तौर पर स्मृति ईरानी ने तो
कहा कि जिस तरह से देखा जाएगा कांग्रेस और दूसरी पार्टियां मिलकर किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, उनको इस मुद्दे पर एमएसपी से लेकर से तमाम सारे मुद्दों पर झूठ बोलने की कोशिश कर रही हैं। अमित शाह ने बहुत अच्छी तरीके से आंकड़ों के माध्यम से इस चीज को पेश किया। उन्होंने कहा कि All right, we'll take you live to the Prime Minister's program.